Okay. Okay. Yeah. Okay. Hey guys, what's up? Welcome. Hi. एक बार प्लीज मुझे आप कंफर्म कर दीजिए if Mhm. we are visible, audible. मुझे आप right. Yeah. We are visible and audible. I'll share this to Telegram Okay. as well. Hi Samreen. Hi Neha. How are you? Hi. Hi. I am great, Keyur. How are you? I am good too. So let us start this. Let us start with. First of all, I'd like an introduction from Samreen, and then let's Okay. move ahead to Neha. So Samreen, Perfect. please introduce yourself. Yes. Okay. Hi, all of you. This is Samreen. I am working with Garden Link, exclusive domain that's creating history with NFTs, I would say. Yes. So my fortunate key role in this particular place would be content and community management, which again, all of us as a team are supremely enjoying every day. Yes. Yeah, that's me. Hi, everyone. Yeah. Thank you, Samreen. Neha, would you like to introduce yourself? I'm Neha Vadkute. I work with again Garden Link, and I support Garden Link with the technical partnerships. So the basically what Garden Link does was very well explained by Samreen in few words. We expertise in providing NFT domains, and projects to be live, and for that, we need to be integrated with a lot of blockchain technology companies or networks that are running right now, which is taken care by the technical side. And Garden Link, being a technical tech company, it provides white label solutions as well as it has some in-house projects like what we have today to be introduced. So yeah, I work with Guardian as a technology person. I've been contributing on the partnership side more and helping Samreen and the marketing team to promote the project that we have in house. Right. So my next question would be: Guardian Link is focused on NFTs, right? So would you expand more on what are NFTs, why are NFTs useful, and why should people invest into NFTs? Because general investors, they are not much, like Indian investors are not much aware about NFTs. They know why they should invest into tokens. But what is the importance of NFTs, and why should they invest into NFTs, and what are the examples, like past examples in which NFTs have proven to be to give like a very good benefit? So if you could, if any one of you could expand on that. Try to simplify this explanation, the NFT part of it, trying to make it relevant to audience who has never heard of NFTs as well. So NFTs is basically what non-fungible tokens. And this is based on a blockchain technology. It's a contract that is made on blockchain technology. And to be, again, blockchain technology is something that, you cannot have alterations with, and there are no chances that you can play around or, erase those, the codes that you write. So that it's one of the most believed technology currently that you see. And to make it relevant, how you go for cryptocurrencies as trading, right? Like you earn money in the form of salaries, you do something through which you get salaries, and you invest that money to buy your assets, which could be your house, which could be any property or land that you take. Similar lines, NFTs is defining that for the blockchain and the crypto industry. It is called non-fungible tokens because they are not fungible. So fungibility is a trait of tokens where you can exchange them. Let's say I give Samreen 1 Bitcoin, or I give Keyur 1 Bitcoin. Three of us can interchange between us, and the value remains the same, right? Until unless there is a fluctuation in the market. But when it comes to NFTs,
because these assets are non-fungible, which means they're not related to one another in any form. So they're unique. They have different traits, which means if you have one Bitcoin, I have one NFT, and Samreen has one NFT. So I and Samreen cannot exchange it for one NFT. That could happen, saying that, let's say my denomination goes to one Bitcoin. Samreen says that her NFT has to sell for one Bitcoin, and I say that one Bitcoin. That's when you can buy Keyur. But until and unless we don't decide, it is not interchangeable. Like, we can't give one NFT to someone and get the other NFT in return. That's not the concept, because it has totally different rates, and a lot of industries have started exploring in the NFT right now. Very recent news I read was Government of India trying to issue people's caste verification certificates in the form of NFTs, which is a big move, if you ask me. Like, because that is something, I happen to come from that kind of a background where my father was working with government on the similar department as well, and I'd seen him facing a lot of issues while it comes to documenting things. And if blockchain and NFTs are solving that by the certificate of ownership they're getting into the market, it's wonderful. It's making everyone's life easy. I know all of us must have heard, like, one ape was sold for this millions and that millions, and the value of it changes. But if you see the use cases industry wise, it changes because the artist industry looks at it in a different way. Till today, you must have heard how a lot of singers, they get into contracts with the music producers, right? And they themselves do not have the copyrights of that particular song, even if they have written it. All the royalty goes to the production house. And through NFTs, actually, a lot of people are singers, musicians, artists, basically, are trying to get that identity very straightforward in the market, saying that, hey, I have made this, and through my NFTs, you can access this. So that makes a lot of sense for artist industry as well, and they've picked it up very fast. And one more thing, one more industry which is very, very well known for this is gaming industry. You've seen that obviously the technology, whenever it comes, it is gaming again is a little chill industry. It's not like how corporates work, right? So that's the reason they could adopt it very fast. They adopted blockchain very much faster than when. If now I'm talking about government adopting it, government or any banks are adopting it. Blockchain did that long back, and they've come up to a level where they've created different mechanisms. Like, we'll talk about how P2E works and those things. So which is a big thing. Gaming industry has definitely taken over it all in terms of NFTs and even the blockchain to be used. That's what my opinion, and that's how the world is running around in Web3, I think. Right. समरीन, आप कुछ बताना चाहेंगी अबाउट NFT? हम लोग थोड़ा सा हिंदी में भी कंसीडर करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड हिंदी, तो we'll switch हिंदी एंड इंग्लिश. Absolutely, कोई बात नहीं. We are fine with English also. हम हिंदी के साथ भी ठीक है. हाँ. राइट. तो आप कुछ NFTs के बारे में कि क्यों NFT इन्वेस्टर्स के लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है? Why should investors invest into NFT? और उनको NFT अगर वो बाई करते हैं, उनको NFT से किस हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप एलाबोरेट कर सकते हो. एब्सोल्युटली. तो मैं हिंदी में बोलूंगी, इंग्लिश में? ओके, तो भी चलेगा. तो अभी के लिए केयूर, अगर हम पिछले साल या फिर 2020 के एंड से, टू बी वेरी एक्यूरेट, आपने NFTs का ग्रोथ ड्रास्टिकली बढ़ा हुआ है, डिस्पाइट ऑफ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डिस्पाइट ऑफ जो भी क्रिप्टो को लेके जो भी टेंशन है और जो भी कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं, बट हाउएवर एवरीथिंग इज फॉर गुड ओनली. तो डिस्पाइट ऑफ दैट, हम लोग ने NFTs के मार्केट में बहुत अच्छा ही हाइक देखा हुआ है, राइट? सो हियर वी आर नॉट हैविंग लाइक एन इन्वेस्टमेंट प्रीचिंग, बट द फैक्ट इज द मार्केट इज वेरी विजिबल. And why people are trusting it? Because it is a credible market. Not just that, when I talk about credibility, despite of we have launched Amitabh Bachchan, हमने Stanley के प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया था. उसके अलावा अब ग्लोबली भी देखोगे तो भी बहुत सारे जाने माने लोग ने ये NFTs लॉन्च किया है.
So for a celebrity or an artist or an athlete or a sports person, whoever who have stepped into this NFT verse, उन लोगों का भी एक set of research होता है, right, to start with the process. And only when the space is credible, any prominent face would step in and उसके लायक का investment करेंगे and things like that. Like how Neha rightly pointed out, ऐसे बहुत सारे projects हैं जो कि last 1.5 year में बहुत ही amazing growth देख चुका है. And हम लोग आए दिन news पढ़ते रहते हैं कि इस celebrity ने इस particular project के NFT को इतने बड़े amount में खरीदा है. And the fact is, they are expecting it to just grow. Again, crypto के space में fluctuation होते रहते हैं. When it comes to NFTs, also in NFT marketplace, you face fluctuations, you face downfall as well. But in a blockchain space, since it's highly secure and stuff, and again, Guardian Link promises the legitimacy protocol, which is all about security. So in that secure space, you're just leveling up your investment. Like how we had a phase where we counted on stocks, where we counted on real estate, where we counted on jewels. So, and then we stepped into blockchain. And when it comes to Web3, if there is the presence of crypto, and then NFT ka presence just legitimizing it, just making crypto ka acceleration even more prominent and credible and authentic. Yeah. Right. So इसीलिए that's one of the major reason that NFTs are here to stay. Right. तो NFTs अभी मार्केट में NFTs चल रही है. फॉर एग्जांपल आपने जो बताया कि it can be used as a utility for games, right? But आप फ्यूचर में NFTs को किस हिसाब से what is the future potential of NFTs? मतलब आज से 5 साल बाद 10 साल बाद किन चीजों में NFTs का यूज होगा? कौन सी फील्ड्स में NFTs यूज हो सकती है? और इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. इनफैक्ट मैं खुद ही बहुत डेस्परेट हूँ NFT का ग्रोथ देखने के लिए कि अगले 5 साल में क्या पॉसिबल हो सकता है. बिकॉज हमने NFT को गेमिंग में देखा, NFT को फिल्म में देखा, NFT को म्यूजिक में देखा. वेरी रिसेंटली इवन रोल्स रॉयल्स भी अपने NFT ला चुके हैं विद देयर अपकमिंग मॉडल. So हर एक industry is trying their hands, be it banking, be it financial sector, being automobiles, being fashion industry. So in despite of considering NFT का growth in just last 6 months, to be specific with India, and more than 1.5-2 years globally, हम लोग ने, I think even Neha would agree with me on that. We have seen like most of the industries talking about NFTs already. Abhi to be very specific with film industry, any movie that comes out, they are having second thought of tickets ka NFT banaye kya. So the flexibility is already began. And after like 5 years, the possibilities are just numerous, or I would say infinity, because हम लोग सोच भी नहीं सकते वैसे चीजें हो जाएंगे NFT और Web3 को लेके. एनालॉजी दे मेरी साइड से. आपको याद है जब मोबाइल फोन्स आए थे तब हमारे पास वो सर्कल में ऐसे राउंड्स रहते थे, 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता था 9 0 तक, और हम लोग ऐसे दबा के फोन करते थे एक दूसरे को कॉइन डाल के. तो वो वाला फेज चल रहा है NFT का अभी फिलहाल. But what I look at NFTs as, and आज जो हम स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड फोन्स, ये एप्लीकेशंस, ये सब चीजें देखते थे जो हम लोगों ने कुछ साल पहले देखी नहीं थी, वो वाले फेज में हम लोग डेफिनेटली जाने वाले हैं आने वाले टाइम में. हमने एक पिछले 6 महीने के अंदर ही जितने चेंजेस देखे हैं, छोटी चीजें होती हैं, जैसे उसके यूज केसेस ही क्या होते हैं. आपने देखा गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा सारी चीजें मतलब रेगुलेशंस लेके आने की वजह से उसका जो फॉर्म है वो डेवलप होते जा रहा है. समीर ने भी मेंशन कि फाइनेंस, एजुकेशन, सब इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे ब्लॉकचेन जा रहा है. हमने एक बहुत बड़ा जावा वाला वेव देखा था जब बम से सब लोगों ने क्या चीजें नहीं तैयार की थी. जब हमने Web 2 डेवलप हो रहा था, हमको पता नहीं था YouTube आने वाला है और हम एक्चुअली ऐसा लाइव में बात कर सकते. दैट्स द मिरेकल ऑफ व्हाट Web 2 has been able to create, and on the similar lines we'll be able to see this in the Web3 space as well. और NFTs उसको ड्राइव करने के लिए सबसे मेन फैक्टर रहेंगे ऐसा हमें लगता है. Right. Absolutely. नहीं, एक और चीज भी है. If we consider like before 10 years, अगर कोई हमें ये बताना कि यार you can post a photo on Instagram और लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उस टाइम पे people would have thought कि अरे यार लाइक्स कमेंट्स में क्या होगा.
लेकिन अब मतलब लोगों को एप्रिसिएशन चाहिए, बट उस टाइम पे वो चीज था कि व्हेन यू मीट समवन पर्सनली तो वो एप्रिशिएट कर देते हैं, लोग खुश हो जाते थे, बट उस टाइम पे लोगों को राइट इंस्टाग्राम पे अभी 10 साल पुराना एक पिक्चर है और मैंने अपलोड करने के बाद मैंने ये सोचा था ये कौन देखेगा, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था इंस्टाग्राम और हमारी लाइफ अब इंस्टाग्राम पे चल रही है। राइट नहीं तो वही चीज मतलब हो रही है, तो एनएफटी की सिचुएशन वही मतलब आज से 10 साल पहले जो ये सारे साइट्स की थी तो वही सिचुएशन। एंड आल्सो इस तरह यहाँ पे एक एड ऑन है मेरा, लाइक हाउ व्हाई इंस्टाग्राम इज अ हिट और एनी सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर, क्योंकि वहां पे हम ब्रेक द हायरार्की ब्रेक कर देते हैं, राइट? सो इमेजिन जब सिर्फ गूगल था सर्च इंजन में, तो आप सिर्फ गूगल इंटरफेस से बात करते थे और वो आपको आंसर देता था, देयर वाज नो सोशल मीडिया एज सच। अभी व्हेन सोशल मीडिया का एग्जिस्टेंस है तो आप you can relate to people, you're talking to you're talking to your peer directly, and most importantly you're connecting with the community, and web3 is all about that. And web3 is, to be very specific, NFT domain, आपका community ही आपका strength है। तो ये that's one of the reason why I said NFTs are here to stay, is because आप कोई भी हो, आप co-founder हो, आप CEO हो, या आप chairperson हो, या फिर आपके पास 10 बिग ऑर्गेनाइजेशन हो NFTs के, बट यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू योर बायर, यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू योर यूजर, एंड आपका कम्युनिटी भी जहाँ वेयर यू आर थिंकिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, द कम्युनिटी इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द माइंड्स बिहाइंड द प्रोजेक्ट, एंड दैट्स वेयर वी मेक इट मोर रेलेवेंट। एंड इसीलिए NFTs का डोमेन इतना फ्लेक्सिबल हो गया है, बिकॉज दे नो दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। वैसे वो कम्युनिटी के फैक्टर में ही NFT होते जा रहा है, and it will continue to do so, because once you form or once you create your cult community, तो उसके बाद it is just upwards, there's no looking back. हाँ, very true. So इसीलिए that's why when you said Instagram, I quickly community is the key, man. Any project community is the key. हाँ, correct. हाँ, तो अब आप you are from Jump.trade. Jump.trade is working on NFTs. Yes. तो Jump.trade को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, लाइक NFT की दुनिया में Jump.trade क्या कर रहा है एंड क्या कंट्रीब्यूशन Jump.trade की तरफ से पूरी NFT कम्युनिटी के लिए Jump.trade क्या कर रहा है उसके बारे में, और Jump.trade के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। My boss Neha will take it up. So Jump.trade is basically क्या है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। किसने बनाया है? गार्डियन लिंक ने बनाया है। गार्डियन लिंक कौन है? एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट करती है, जिनमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने रिसेंटली अकम्प्लिश किया है, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर रन भी हो रहे हैं, विच इज कॉल्ड beyondlife.club। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अभी आज लाइव में भी जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। अमिताभ बच्चन प्रोजेक्ट हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली किया था। उसके बाद हमने स्टैनली का चक्रा NFTs किए थे, LA टाइम्स के NFTs किए थे जो अभी भी बियॉन्ड लाइफ में अवेलेबल है, एंड हिंदुस्तान टाइम्स के भी NFTs किए थे। देयर आर वेरी prominent brands which are coming up with us, और वो अपने ब्रांड्स के लोगोज या NFTs बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं हमारे साथ बियॉन्ड लाइफ के थ्रू, और ये सब फैसिलिटेट किया था गार्डियन लिंक के प्लेटफॉर्म में। नाउ गार्डियन लिंक अभी एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जिसका नाम है Jump.trade। नाउ ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म इसलिए ताकि हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर सके, हमारे सारे दर्शकों को जो कम्युनिटी मेंबर्स भी हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एंड उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ है, गेमिंग की तरफ है, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने Jump.trade ये प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका सबसे पहला प्रोजेक्ट है मेटा क्रिकेट लीग। ये बेसिकली क्या है, ये क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा NFT बेस्ड गेम है जो हम क्रिकेट के स्पेस में देख रहे हैं। बेसिकली आप इसमें एक प्ले टू अर्न मैकेनिज्म है। प्ले टू अर्न मतलब क्या, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे जो नए दर्शक हैं उनके लिए। बेसिकली पहले के जमाने में, अगर आपको याद होगा 10 साल पहले ऐसा था कि हम पे करते थे और एप्स खरीद के फिर गेम्स खेला करते थे। आज का बीच में एक टाइम आया था जब हम लोग फ्री में गेम्स खेलने लग गए थे, राइट? और आज के ब्लॉकचेन वाले जमाने में ऐसा हो गया है कि आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली आपको टाइम और मनी, जो बच्चों ने जिन बच्चों ने बचपन में बहुत डांट खाई है
वीडियो गेम्स खेलने के, वो आज मिलियनियर्स है क्योंकि वो गेम्स खेल रहे हैं. दैट इज मतलब हाँ हम थोड़ा फनी लगता है, बट ये एक पूरा का पूरा करियर बना चुके हैं. आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द यूट्यूबर्स, बट ऐसे लोग जो सिर्फ अपना टाइम और दिमाग इन्वेस्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स प्लेइंग गेम्स बिकॉज इट्स मोर लाइक अ पैशन टू देम. उनके लिए प्ले टू अर्न गेम इज बिकम लाइक अ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा एक ये बन गया है, एक माध्यम बन गया है टू अर्न मोर मनी. या फिर कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं हर बार कोई भी सेशन जब होता है तब ये मेंशन करती हूँ कि हमने एक्सी इन्फिनिटी करके एक गेम होगा जो आप सबने सुना होगा आई एम श्योर. तो ये गेम की वजह से, बिकॉज ये प्ले टू अर्न गेम है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो फिलीपींस और वियतनामीज है उन्होंने अपना रोज का जो खर्चा वगैरह होता है या फिर उन लोगों ने अपने जॉब छोड़ दिए और बेसिकली प्ले टू अर्न गेम से पैसे कमा के वो अपना घर चला रहे हैं. ऐसा स्टेट आने वाला है और आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे आई एम श्योर. अभी के लिए जंप डॉट ट्रेड हम लोग एक एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से भी लेके आ रहे हैं क्योंकि ये क्रिकेट गेम है. हमें पता है कि इंडिया में क्रिकेट कितना इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक रिलीजन गॉड. हम सब क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं. इट्स अ इमोशन फॉर ऑल ऑफ अस. तो उस चीज को, और हमने हम सभी बचपन से क्रिकेट खेलते हुए आए हैं. गली में हो या क्लास में हो, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज बैट बन सकती है, कोई भी चीज बॉल बन सकती है और इंडियंस क्रिकेट खेलना चालू कर देते हैं, राइट. तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए सबसे एंटरटेनिंग जो चीज हो सकती है विच इज अ क्रिकेट गेम, वो जंप डॉट ट्रेड के थ्रू हम लेके आ रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले आप ये विटनेस करेंगे कि इस 22 तारीख को 22 अप्रैल 2022 को हम पहले NFT ड्रॉप करेंगे. मतलब क्या, पहले प्ले टू अर्न गेम्स में ऐसा होता है कि आपको पहले एसेट्स बाय करने पड़ते हैं. अब वेरी सिंपल थिंग, अगर हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं तो क्या एसेट्स होंगे, तो क्रिकेट के जो भी गेयर होंगे वो सारे एसेट्स होंगे. बैट, बॉल, सिंपल चीजें जो लगती है वो इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हमें ये जो NFT ड्रॉप आने वाला है 22 तारीख को उसमें देखने को मिलेगा. और उसके बाद एक महीने में ही क्रिकेट, ये MCL जो गेम है जंप डॉट ट्रेड पे क्रिकेट का, वो लाइव होगा. मतलब आपने ऑलमोस्ट एक महीने के लिए आपने एसेट्स खरीद के रखे हैं, उसके बाद आप उसको यूटिलाइज करना चालू करेंगे गेम्स खेल के, ये पर्टिकुलर क्रिकेट गेम खेल के. जैसे जैसे आप खेलते हैं देयर बी 2 पार्टीज जो खेलती रहेगी. जो सबसे ज्यादा रन्स बनाएगा उनको लीडर बोर्ड में आगे जाने का मौका मिलेगा. जैसे जैसे आपका लीडर बोर्ड का पॉइंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको उस पॉइंट्स को आप एनकैश कर सकते हो. मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा के ले सकते हैं, या फिर बिकॉज जंप डॉट ट्रेड एक प्लेटफॉर्म है जो अपना खुद का NFT प्लेटफॉर्म भी है और वहां पे मार्केट प्लेस भी अवेलेबल है. तो उस कैश जो भी पॉइंट्स होंगे उससे आप और भी नए टाइप के NFTs जो मार्केट प्लेस में लोग बेचना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, वो सारी चीजें भी आप खरीद सकते हो. ये जो ड्रॉप आने वाला है वो 22 तारीख को है. सिंपल सा मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट ये दिस इज बेसिकली जंप डॉट ट्रेड. वी आर ब्रिंगिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट NFT गेम जिसमें NFTs यूज होंगी. NFTs खरीद के आप रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जीत सकते हो. और ये मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को जीतने के बाद आप उनको एनकैश करके बेसिकली डे टू डे बेसिस पे आप अपना अर्न जो भी कैश है वो निकाल के ले सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट है जंप डॉट ट्रेड. राइट. सो आपने जैसे यहाँ पे बताया कि 22 अप्रैल को NFT ड्रॉप होने वाला है. तो इफ समवन बाइज दैट NFT, तो उसके बाद उसका क्या बेनिफिट होगा, लाइक क्या प्रॉफिट होगा, एंड साथ में हाउ विल दोस NFT बी यूज्ड इन द गेम, जो गेम लॉन्च होने वाली है MCL, तो वो कैसे कनेक्ट होगा. एंड अगर कोई बाय करता है on 22 तो किस हिसाब से वो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते. Yeah. So, so 22nd NFT drop, fingers crossed. हम सब, you will also have to go buy Keyur, and all your audience will have to go buy the drops. But yes, so cricket NFTs, like Neha ने already mentioned किया कि how cricket is such a huge thing, not just in India but also prominent countries worldwide. बट क्रिकेट लाने के बाद वी एक्सपेक्टिंग टू उसका भी अलग सा होल PR आएगा बाहर दैट विल एनहांस द क्रेडिबिलिटी.
कि cricket game is expected to launch by end of May. That is exactly 1 month after the launch. उस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सिंपली पुट, आपका जो NFTs आप जो 22nd को खरीदोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर एंट्री टिकट फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट NFT गेम. So that, yes, so that's basically your entry ticket. And not just that, आपका जितने भी NFTs है वो आपको मदद करेंगे उस गेम में खड़े रहने के लिए, उस गेम में खेलने के लिए, अपग्रेड होने के लिए. हम लोग और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं, वेर यू कैन रेंट योर NFTs, वेर यू कैन एक्सचेंज विद योर पार्टनर्स, वेर यू एक्सचेंज विद योर अमॉन्ग योर टीम एंड ऑल ऑफ दैट. दैट विल एनहांस विद द टाइम. बट टू होने के लिए आपके पास NFTs होंगे तो ही आप वो गेम एक्सेस कर पाओगे. ये बी व्हेन वी आर लॉन्चिंग द गेम, उसका मार्केट प्लेस भी आने वाला है, तो आप ट्रेड भी कर सकते हो NFTs को रख के, व्हिच इज अगेन इट्स अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट दैट एनीबॉडी वुड डू विद देयर NFT. तो ट्रेडिंग ऑप्शंस भी है आपको NFT को लेके, सो दैट विल अगेन गिव यू उसका पर्टिकुलर यूटिलिटीज अटैच्ड. सो अब व्हेन आई टॉक अबाउट यूटिलिटीज, ये क्रिकेट NFT जो ड्रॉप हो रहा है उसका सबसे बड़ा यूटिलिटी इटसेल्फ इज द गेम. या so to enjoy such a game, all you have to do is just own one cricket NFT or multiple NFTs, of course. But agar only if you have that, you can enter the game. And jo MCL, unhone very clearly she's explained what is MCL all about. But to be part of the history, you will have to hold an NFT. मैंडेटरी है, आपको NFT खरीदना जरूरी है. अगर आपके पास NFT नहीं है तो आप खुद का गेम नहीं खेल पाएंगे. एक भी होगा तो भी चलेगा, आप एक से ज्यादा भी बाय कर सकते हैं, 5, 10. हमें पिछले ड्रॉप्स में देखा है कि लोगों ने एट अ टाइम 20-30 NFTs भी खरीदे हुए हैं. क्या हम क्या करते हैं, सुपर लूट करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम NFTs को एट फ्लैट प्राइस, मतलब ये होता नहीं है कहीं पर भी, ये ब्लाइंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम प्रोजेक्ट्स है वो लेके आते हैं. वो $25 में हम NFTs यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. मतलब एक NFT का प्राइस $25 होगा, और ये एक जो लूट बॉक्स, जो सुपर लूट बॉक्स होगा, उसमें अराउंड 25,000 ऐसे NFTs होंगे जो आप रैंडमली आपको अलोकेट होंगे. मतलब समरीन ने चूज किया कि सपोज उनको 5 खरीदने हैं, आपने 10 खरीदने हैं, सोच लिया, तो आपको रैंडम एलोकेशन होगा. आपको NFT खरीदने से पहले पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा NFT मिलने वाला है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. और सबको इक्वल चांस मिल रहा है टू विन लेजेंडरी, अल्ट्रा लेजेंडरी और डिफरेंट ट्रेड्स वाले जो NFTs होते हैं, वो पाने का एक बहुत सिंपल तरीका है. क्योंकि क्या होगा मैं बताती हूँ. जैसे ही समरीन के पास एक बहुत अच्छा NFT है, अमिताभ बच्चन इसके बाद, तो उनके लिए क्या होगा, वो अपना NFT का मतलब उन्होंने जब खरीदा था तब उन्होंने एक फ्लैट प्राइस पे खरीदा था, जिसमें मैंने भी खरीदा हुआ था. बट उनके पास बिकॉज वो लेजेंडरी NFT आया हुआ है, वो जब मार्केट प्लेस पे डालेगी तो उसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो प्राइस है, वो अराउंड 200-300 टाइम्स ज्यादा है नॉर्मल NFT से. मतलब जो NFT में $25 में सपोज खरीद रही हो, और समरीन ने भी $25 में ही खरीदा, बट बिकॉज उनका एक स्पेशल NFT आया हुआ है, तो वो उसका into 300x भी जाता है प्राइस. वो हम लोगों ने किया हुआ है. इसीलिए ये ऐसा रैंडम एलोकेशन का एक सिस्टम हम लोगों ने सुपर लूट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया हुआ है. Jump.trade is known for that. इसमें भी जो हम NFTs, जो बेसिकली NFTs का पार्ट है, उसमें जितने भी NFTs इंट्रोड्यूस होंगे, उसमें से कुछ NFTs ऐसे हैं which are associated and linked to some of the cricket celebrities, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, जिनके सिग्नेचर बैग्स मिलेंगे, या फिर ऐसे टाइप के कुछ NFTs हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया है कलेक्शन में. तो आप अगर लकी है, मतलब वो कंसिडरेट अमाउंट ऑफ नंबर है, तो अगर आप लकी है, अगर आप एक से ज्यादा भी खरीदना चाहते हैं, 5 में से एक वो NFT आने का चांसेस ज्यादा है, राइट? तो आप रख सकते हैं. ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म, जब हम हमारी तरफ से NFTs दे रहे हैं, तब हम देने की कोशिश करते हैं, which is $25, $25. Yeah, absolutely. राइट. तो प्रोबेबिलिटी वाली चीज बन जाती है ना, कि जितने ज्यादा आप NFTs लेते हो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यू गेट. बट
लाइक अ स्टेटमेंट हम ये तो बोल सकते हैं कि आपको एवरी एनएफटी दैट यू होल्ड, आपको डेफिनेटली उसके साथ यूटिलिटीज के साथ ट्रेड वॉल्यूम्स के साथ आपको डेफिनेटली वो पर्क्स मिलेंगे. Like how one major point is you can access the game only after you own that NFT, at least for now. And not just that, अगर आप रोड मैप भी देखोगे जम डॉट ट्रेड में, आई एम श्योर आपका प्रीवियस वीडियो में भी उसका हाईलाइट होगा. तो वी आर डेवलपिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ्स अराउंड इट. सो उसमें मैंने ऑलरेडी थोड़े कॉन्सेप्ट्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप वो चेक करोगे तो द पॉसिबिलिटीज आर इनॉर्मस. बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं. अगर मैं डिटेल्स अभी थोड़ा थोड़ा बोल दूंगी तो आई बैडली वांट टू, but let just be that way because we wanted to make sure that हमारे सारे NFT holders उतना ही प्राइम महसूस करे जितना हम लोग उसे बनाने में महसूस करते हैं. Right. नहीं, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि jump.trade is backed by Guardian Link, और Guardian Link ने मतलब उसके अंदर जो Beyond Life था उसके अंदर अमिताभ बच्चन जी की NFT, स्टैनली की NFT, ये सारी चीजें आई थी. तो अब यहाँ पे क्यों यहाँ पे jump.trade क्यों इम्पोर्टेंट है, और गार्डियन लिंक यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, और लोगों को मतलब क्यों यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए? आप मतलब वो सारी जो, अगर आप वो चीज बता पाओ कि प्रीवियस एग्जांपल्स जो गार्डियन लिंक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आए थे उसके बारे में, अगर आप पास्ट हिस्ट्री के बारे में बता पाओ तो. एब्सोल्युटली, या. बट आपने अभी जो क्यों ट्रस्ट करना चाहिए बोला, तो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दैट क्यों, बिकॉज हमने अमिताभ बच्चन को लॉन्च किया है. तो आई थिंक द ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी उसके बाद सवाल ही नहीं उठता. उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि आप बोलो कि आगे व्हाई वी नीड टू व्हाई आर यू गाइस क्रेडिबल, बिकॉज आई एम श्योर कि कम्युनिटी में वो पूछना स्टॉप कर दिया उन लोगों ने. स्टॉप कर दिया उन लोगों ने. एंड आफ्टर अमिताभ बच्चन वी अगेन launched legendary Stanley का Indian character चक्रा the Invincible. वो भी amazing था. I think उसके बाद वो भी globally एक mark set हो चुका है कि okay, so this company called Guardian Link has launched such credible projects. However, जब हम jump.trade की बात करते हैं, jump.trade is the baby of Guardian Link. हम लोग वी लॉन्च अमिताभ बच्चन स्टैनली, ओवरऑल जो भी उसका टेक्नोलॉजी गया था सब गार्डियन लिंक के थ्रू ही गया था. एंड विच एवर द प्रोमिनेंस व्हेन वी टॉक अबाउट PR और मार्केटिंग और द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, luckily, fortunately, it all belongs to Guardian as well beyond life, but that was a product of association, whereas jump.trade is solely developed by Guardian Link. इसीलिए मैं jump.trade को Guardian Link का बेबी बुलाती हूँ, because वो literally Guardian Link का बेबी है. तो yes, तो previously अपने अमिताभ का सक्सेस देखा है, स्टैनली का सक्सेस देखा है. सक्सेस के साथ वो जो नाम कनेक्ट हुआ है, तो that itself is very legitimate. True. And in terms of numbers as well. अमिताभ बच्चन का जो सुपर लूट बॉक्स जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, वो अराउंड 52 मिनट्स में पूरा सोल्ड आउट था. एंड वो टाइम पे फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, बट आई एम टेलिंग यू, जब हम लोगों ने स्टैनली के NFTs किए थे 12,000 ऐसे कलेक्शंस थे जो एग्जैक्टली सेकंड्स में सोल्ड आउट हुए. 50 seconds is the time, which is like record making. Unbelievable, yeah, exactly. By the time we realized that how many drops left, we were already sold out. Again, full gratitude to the community and our user base, but it was amazing experience. इसीलिए when we are talking about credibility, वो जो jump.trade में Neha has rightly mentioned that here you can hold authenticated digital assets from the legends of cricket. Now you tell me what more credible it can get. Right. So, imagine somebody who's a cricket fan. I've seen like I should not categorize it like that or generalize it. 60 to 70% of Indians, they will go for cricket, including the boys who have these things in mind, where you want to meet Virat Kohli, you want to meet Sachin, or anybody's bat. You've seen those movies as well, where Kapil Dev ka bat has done wonders. बच्चे ने cricket में पता नहीं क्या कुछ कर दिया था, टेन को लेके मेन को लेके. So I remember that association जो है, वो जो feeling होता है कि अच्छा मुझे इनमें
दिया हुआ कुछ मेरे पास है, तो वो तुम्हारे पास आ रहा है थ्रू jump.trade। एंड इसका इस चीज का ऐसा एज अ कलेक्टेबल वैल्यू नहीं है, इस चीज को आप बेसिकली सेल कर सकते हो मार्केट प्लेस पे, उसका एक लेजिटिमेट वैल्यू आप इससे जनरेट कर सकते हो अगर आपको जरूरत होगी। इट्स एक्टिंग एग्जैक्टली लाइक हाउ योर एसेट्स एक्ट। सो आई थिंक सबके लिए सिचुएशन है, आप वो एनएफटीज खरीद रहे हो, आप वो बेच रहे हो, आपका फायदा है। आप वो एनएफटीज खरीद रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, उससे आप आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उससे भी आपका फायदा है। अगर आप लेजेंडरी ऐसे कुछ एनएफटीज आप पा रहे हैं जो सुपरलूट है उसमें से, और उसको होल्ड करने की जो खुशी है कि मेरे पास किसी का तो बैट है, वो इट इज इक्वल टू द मॉनेटरी बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग। सो दैट्स द रीजन वी बिलीव इन व्हाट jump.trade is bringing for everyone here। Right. अब ये जो अमिताभ बच्चन जी की एनएफटी थी, तो इतना ज्यादा, मतलब आपने बोला कि 53 मिनट्स में पूरी सोल्ड आउट हो गई, एंड स्टैनली की एनएफटी थी वो तो 53 सेकंड्स में सोल्ड आउट हो गई। तो मतलब लाइक व्हाट इज बिहाइंड द सक्सेस, लाइक क्यों इतना ज्यादा फास्ट चीज, एंड कैन वी एक्सपेक्ट द सेम लाइक इन दिस वन एज वेल? उसके पीछे का रीजन क्या था? जो पास्ट, चलो वो तो हम नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट वो जो पास्ट में जो चीज हुई थी कि इतना जल्दी सोल्ड आउट हो गया, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो आपने एनएफटीज के बारे में जब सुना होगा तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं, जैसे ERC 721, ERC 1155। तो ERC 721 ये जो डिजिटल एसेट्स होते हैं वो बेसिकली आपको एक वन ऑफ अ काइंड वाला जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस होता है। 721 मतलब आप एक एनएफटी दूसरे एनएफटी जैसा नहीं होगा इन एनी फॉर्म, मतलब एक वन ऑफ अ काइंड है, दुनिया में एक ही ऐसा एनएफटी बना है और वो आपके लिए है, राइट। ये जब हम लोगों ने अमिताभ बच्चन जी के लिए किया था, और ये जब हम लोगों ने स्टैनली के लिए किया था, पूरा सुपर लूट का जो डिजिटल एसेट का कंटेंट था वो सारा स्टैनली के लिए 721 था। मतलब आज भी जो होल्डर्स है उनके लिए वो इट मेक्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है हर एक एनएफटी जो वो पा रहे हैं। नो डाउट इतने बड़े लेजेंडरी लोग हैं जैसे अमिताभ बच्चन है, स्टैनली का एसोसिएशन है, इन लोगों की वजह से डेफिनेटली द नेम प्लेज अ बिग रोल, बट उसके अलावा कम्युनिटी ने उस तरीके से रिएक्ट भी किया है कि एनएफटीज में एक कोई तो गार्डियन लिंक कंपनी है और बियॉन्ड लाइफ के थ्रू वो अपने एनएफटीज लेके आ रही है, राइट। हमने बहुत सारे एनएफटीज सुने हैं, मतलब आई वुड नॉट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट इंडियन बेस्ड एनएफटीज है, बट हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। आपने उनकी वेबसाइट्स नहीं देखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के तो मैंने मतलब आई जस्ट रेड द न्यूज की अच्छा ये सेलिब्रिटी ने पहला वाला लॉन्च किया है, बट आई डोंट नो वेयर द वेबसाइट इज। वी मेड श्योर दैट हम लोगों ने हमारी कम्युनिटी बनाने की उतनी ही कोशिश की है। हर कोई नाम भी सुना होगा उसको, शायद हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बियॉन्ड लाइफ, जहाँ पे सेलिब्रिटी, ब्रांड्स, स्पोर्ट्स, इन सब एक्टिविटीज तुमको मिलेंगे और वो सिंपलेस्ट इजीएस्ट मैनर में मिलेंगे। आज की तारीख में आप अगर ओपन सी पे जाएंगे या आप कोई भी रेयरेबल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल टर्म्स में जो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपको एक मेटामास्क लगता है, आपको कुछ क्रिप्टोज लगते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, जब हम पहली बार ये कर रहे थे तो बोला था कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे तो लोगों को मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है उनको, जिनको हमें इंट्रोड्यूस करना है कि ये एनएफटीज है, ये डिजिटल एसेट्स है, उनको आप लोग एक्चुअली दूर कर देंगे क्योंकि इतना बड़ा प्रोसीजर बता रहे हैं हम उनको करने को, राइट। तो बियॉन्ड का गार्डियन लिंक बेसिकली इस चीज में एक्सपर्टाइज करता है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में लोगों को एनएफटीज खरीदने को मिले। आप अभी भी बियॉन्ड या फिर गो टू jump.trade राइट नाउ, आप एक सिंगल साइन ऑन से ईमेल आईडी साइन ऑन से आप साइन अप कर सकते हैं। वो साइन अप करने के बाद आपको एक ही वॉलेट है जो उस साइन अप करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी है जिससे वो लिंक्ड है ऑलरेडी, तो आपको एक नया वॉलेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो एक्स्ट्रा वर्क है वो निकालने की कोशिश हम लोगों ने हमारे के थ्रू की है, और सेम चीज आपको jump.trade में भी मिलेगी। उसके अलावा इंडियन क्राउड, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा अभी मतलब कुछ पिछले 4 से 5 साल के बीच में हम सब लोगों ने Amazon यूज करना सीखा है, हम लोगों ने UPI यूज करना सीखा है। इस चीज की वजह से हम लोगों ने वो एंगल भी लेके आने का कोशिश किया है कि आप अपना जो वॉलेट है, jump.trade का वॉलेट है, वो डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर UPI के थ्रू बेसिकली
रिचार्ज करके रख सकते हैं, फंड करके रख सकते हैं। तो और उसके इक्विवेलेंट आपको यूएसडीटी वैल्यू मिलेगी। मतलब दैट्स द इजीएस्ट पॉसिबल वे टू बाय अ एब्सोल्युटली, हाँ, राइट। तो ये सारे छोटे छोटे चेंजेस है और छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस है, उसको हमारे प्रोजेक्ट में लाने की जो हम लोगों ने कोशिश की है, उसकी वजह से ये इजी हुआ है। जब हम बात भी कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना सिंपल है, लोगों को जो एक्चुअली एनएफटी ट्रेड करते हैं उनको वो बिलीव नहीं होता है कि अच्छा इतना सिंपली इन लोगों ने डिजाइन कैसे कर दिया। तो इस चीज की वजह से ऑल दीज प्रोजेक्ट्स हैव मेड ग्रेट सक्सेस। आई वुड से अमिताभ बच्चन का भी प्रोजेक्ट और स्टैनली का भी प्रोजेक्ट और उसके अलावा भी जो हिंदुस्तान टाइम्स और एलए टाइम्स की भी प्रोजेक्ट है, वो भी सिमिलर लाइंस पे बने गए हैं, जब आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। और हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ये देख रहे हैं लाइव अभी, वो आए और एक बार ट्राई करके देखें, साइन अप करें। इट्स वेरी सिंपल। आपको जैसे आप मिंत्रा पे, अमेज़न पे चीजें खरीदते हैं, शॉप करते हैं, बिल्कुल राइट। नहीं तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है कि मतलब जनरली इट इज लाइक कि आप सिर्फ यूएसडीटी से बाय कर सकते हो, बट यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में भी पता नहीं है, दोज आर नॉट इवन यूजिंग एक्सचेंजेस, या फिर तो वो लोग भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। केयूर, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अगेन यस, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जिन लोगों को क्रिप्टो का भी उतना एक्सपोजर नहीं है, दे कैन स्टिल कम फॉरवर्ड, उन लोगों का एनएफटी ओन कर सकते हैं। बट हमारा विजन इसके बिहाइंड लॉन्चिंग द एंटायर द प्रोजेक्ट, इसका विजन यही था कि मेकिंग एनएफटीज एक्सेसिबल टू एवरी कॉमन पर्सन। वो अंडरलाइंड था। तो हम लोग ने जो भी किया, वी मेड श्योर वो ही नैरेटिव में कर रहे हैं। एंड जैसे आपने अमिताभ और स्टैनली का बोला कि इतने कम समय में चले गया, स्टैनली वाज आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज आपका वी वर स्टिल एक्सपेक्टिंग, बिकॉज वी इंडियन क्राउड है, फिर ग्लोबल डिमांड है। स्टैनली का थोड़ा डायलेमा था बिकॉज पहले हम लोग को सबको बोलना था कि चक्रा कौन है, तो बट अगेन इट वाज माइंड ब्लोइंग। In despite of that, we had a lot of users coming back and saying, "Arey, we missed it." So that only keeps us motivated. And when it comes to Amitabh, you will not trust me. 98% of people missed Amitabh's drop. उतना सारा बिकॉज हम लोग इतने परसेप्शन में आई थिंक अब तो हम लोग नहीं है, बिकॉज गार्डियन लिंक हैज सीन इट। इन जनरल पीपल हैव दिस आइडिया, अरे क्रिप्टो इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैन, अभी क्रिप्टो है तो एनएफटी ये क्या है, ये तो एक इमेज के लिए उतना पैसा कौन डाल के लिएगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट जब हमने अमिताभ का रीच देखा, देन वी नो, अरे वी हैव ऑडियंस इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एवरीवेयर। वी नो वी हैव पीपल हु अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी टू द कोर। ट्रस्ट मी, हर एक यूजर जिन्होंने हमारे पास खरीदा है, दे आर ऑल वेल अवेयर वेयर दे आर पुटिंग देयर मनी। And that all comes from only trust and credibility that I think somehow we have successfully created it, and we'll always ensure that we take it forward. Right. नहीं, अब कोई ऐसा भी प्लान है कि मतलब अमिताभ बच्चन जी की एनएफटी तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, so is there any plan to combine both of this, like जो क्रिकेट एनएफटी आ रही है और जो एमसीएल आ रहा है उसको उसके साथ कुछ? Yes. Is there any plan? Yes. Somebody, do you want to take this up? We have a beautiful. Yeah, okay. So we have a beautiful concept. इसे हम लोग yield generating assets करके term किया है, which again literally yield generating assets है. So as time goes forward, I think all of you will witness this wonder. But I think पूरी दुनिया में ऐसा concept हम ही ला रहे हैं, तो जो भी क्रिकेट एनएफटीज लॉन्च होंगे, we have a community call on Friday. तो हमारे जो भी ओजी अमिताभ एनएफटी होल्डर्स या करंट एनएफटी होल्डर्स को, करंट एनएफटी बिग बी पंक होल्डर्स, तो ओके, तो अभी टू स्टार्ट विथ वी आर लिटिल particular with only Amitabh NFT, उसमें भी big B punk NFTs, because again like how Neha has already mentioned about ERC 721 and ERC 1155, मैं फिर वो बोल के बोर नहीं करूंगी। so वो हम लोग ने वो ERC 721 big B punks के लिए स्टार्ट किया है, wherein all our NFT holders can come forward, उनके profiles में जाके they can opt to be part of the pool. Pool is where they are volunteering their NFT to be part of one of the cricket NFTs that are going to be launched.
स्टेकिंग मैकेनिज्म। तो यस, तो इसका एक वंडरफुल पर्क ये होगा, अगेन दिस इज वन ऑफ द यूटिलिटीज दैट आर बिग बी पंक होल्डर्स आर एक्सपीरियंसिंग, so that's something really amazing. It's an history in making, to be very honest. तो जब मैं यार आप जाके वो NFT खरीदेंगे तो से उसका एक एलिमेंट अमिताभ NFT भी होगा. So either you will find it in the properties or you yourself can witness it. So उस element में the best part is if every time your cricket NFT is traded, that is every time your cricket NFT is traded, since उसका सारा IP everything, because it's Garden Link's baby, we've created it. तो जो भी royalties that goes to the organization will share a percentage of the particular NFT's royalty to the particular Big B NFT holder, which again it's definitely a one of a kind concept, because कोई भी NFT organization आपको उन लोगों के royalties में से share नहीं देता. अभी तक तो नहीं दिया है, वो तो मुझे पता है. तो कोई भी वैसे नहीं करते. एंड हमने बिग बी पंक्स को कैटेगराइज किया था व्हेन वी लॉन्च्ड इट. वी हैड लेजेंडरी, अल्ट्रा लेजेंडरी एंड कॉमन. All of them are ERC 721. So अगर आपका NFT, आपकी NFT लेजेंडरी है तो आप 30% रॉयल्टीज के ओनर बन जाओगे. अगर आपकी NFT अल्ट्रा लेजेंडरी है तो आप 50%, लाइक लिटरली हाफ ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स फ्रॉम दैट NFT ट्रेड्स, आपको वो शेयर मिलेगा. एंड इफ इट्स कॉमन NFT दैट यू होल्ड, आपको 20% मिलेगा. Here the amazing factor is you don't even have to trade your NFT. आपको बस ऑप्ट करना है, जाके पूल में वॉलंटियर करना है आपके प्रोफाइल में कि अरे आई वांट टू बी पार्ट ऑफ क्रिकेट NFTs इन मेकिंग, एंड आपका जो एट्रीब्यूट मेंशन होगा वो क्रिकेट NFT में उसका जो है गेम में उसका जो भी वैल्यू बढ़ रहा है, उसका जो भी रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन को आएगा मिलेगा. सो यू आर नॉट गोइंग टू put an effort to even trade that NFT. You hold your asset and volunteer for being part of cricket NFT drops that are coming up on 22nd of April. And whatever royalties आपके NFT के through आएगा वो आपको मिलेगा. And this is why we have termed it as yield generating asset, because it literally it is. It's like your investment which guarantees your return. Right. और कोई मतलब आर्टिस्ट या फिर ब्रांड्स के साथ आर यू गोइंग टू कोलैबोरेट और पार्टनर? Absolutely. Absolutely. We are in talks with several artists and brands, some some Indian names, some global names. We can't take names because they all have their set of process, and uska bhi big blast hone ko baki hai. Yes. For the definitely आप expect कर सकते हो artists from South India, artists from southernmost part of India, artists from northern India, everywhere. Including India, हाँ, exactly. Global partners भी है हमारे पास. कुछ brands है, कुछ entities है, कुछ media houses है, entertainment industry से कुछ लोग हैं जो NFTs बनाना चाहते हैं. Because Sabri ने जैसे बोला कि because it's a partnership that goes on, right? Like जब तक वो announce नहीं करते कि हम ये करना चाहते हैं, तब तक हमें भी वो announce करना allowed नहीं होता है. But definitely जो अमिताभ बच्चन NFTs कर रहे थे, same questions आ रहे थे कि आप और कौन से NFTs करने वाले हो. तो उस वक्त भी हमने यही बोला था कि in coming time you'll be able to see that. आप best चीज होगा अगर हमारे जो दर्शक है सब अगर जाके हमारे Twitter accounts, हमारे गार्डियन लिंक के ट्विटर अकाउंट्स बेसिकली जाके फॉलो करेंगे तो आपको हर नया पार्टनरशिप जो होगा उसके बारे में पता चलेगा. वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल है जिसमें एक बहुत बड़ा कम्युनिटी चलता है. एवरी फ्राइडे हमारे पास कम्युनिटी कॉल्स होते हैं. लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, जो NFT होल्डर है, उनके क्वेश्चंस मैनेज करना, प्लस ऐसे नई चीजें जो क्या बोलते हैं हम नई चीजें लेके आते हैं, जैसे ये यील्ड जनरेशन एसेट जो हम लोग लेके आए हैं, इन सब चीजों के अनाउंसमेंट जो फर्स्ट हैंड होते हैं वो सारे हम लोग डिस्कॉर्ड चैनल पे करते हैं. तो अगर आप सब लोग अगर वहां पे जाके ऐड इन हो सकते हैं और अपने आप को उस चैनल का अगर पार्ट बना सकते हैं तो दैट विल बी बेस्ट. हर नई अपडेट आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी. अगर कुछ नहीं तो हम केयूर जी के चैनल पे तो बिल्कुल आएंगे, हमेशा बात करेंगे और या फिर खुद हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते रहेंगे. आई एम श्योर अभी तक वो
हमारे प्रोजेक्ट पे इतना विश्वास कर चुके हैं, मैंने और समरीन में इतना काम तो कर दिया होगा। राइट नहीं, मैं तो इस प्रोजेक्ट के Yeah. बारे में बात करता हूँ, बट जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी कुछ गिव अवे मिलना चाहिए। सो वैसी कोई चीज कि हम जो सब्सक्राइबर्स मतलब ज्वाइन करें, रजिस्टर करें, उनको अच्छा। कुछ गिव अवे दे सके, ऐसी कोई चीज हो तो वो भी अच्छा रहेगा। केयूर जी, आपके दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली एक कूपन कोड हमने बनाया हुआ है, केयूर KEYUR 100 केयूर 100। सो बेसिकली जब आप साइन अप करेंगे jump.trade पे, तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, अपने डिटेल्स और पासवर्ड डालने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई हैव कूपन कोड, आपको क्लिक करना है, उसमें केयूर 100 लिखना है, तो आपके अकाउंट में फंड्स ऐड होंगे, विच इज 100 रुपीज वर्थ ऑफ ईथ आपके अकाउंट में मिलेगा अभी, अगर आप जाके वो अवेल करते हैं। 100 रुपीज वर्थ ऑफ ईथ आपकी Okay, thank you. और वो चीज they can use to buy the NFTs, right? yes. आप उसके बाद अपना अकाउंट फंड कर सकते हैं एंड उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। Right. और प्रोजेक्ट के बारे में और लाइक इफ दे वांट टू नो मोर डिटेल्स, तो मतलब कौन से प्लेटफॉर्म्स आपने जो बताया, वी विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी वेबसाइट से दे everything is connected through the website, right? बहुत सिंपल सा वेबसाइट है jump.trade, आप वहां पे जाके लिंक की, आप अगर वो टाइप करेंगे आपको सारे चैनल, इंस्टाग्राम पेज, आपका ट्विटर पेज वो मिलेगा, आपको गार्डन साइट मिलेगा which is gardenlink.io। बहुत सिंपल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि हमारे अभी तक के लॉन्चेस कौन से हो चुके हैं, हमारा टीम क्या है, CEOs, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, कंसल्टेंट्स, जो भी लोग हैं इन्वॉल्व है, उन लोगों की भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट में देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे गार्डन लिंक काम कर रहा है, लेजिटिमेसी प्रोटोकॉल, और भी कुछ इंटरनल न्यूज है जो कुछ टाइम में हमें देखने को मिलेगी वेबसाइट पे भी, वो सारी चीजें भी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जो काम हो रहा है बेसिकली, वो सब गार्डन लिंक के वेबसाइट gardenlink.io पे आपको सबको देखने को मिलेगा। राइट। अब ऑडियंस में यहाँ पे देख रहा था कि ऑडियंस की तरफ भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि इफ दे बाय द एनएफटी ऑन 22nd, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे, क्या उसी प्लेटफॉर्म पे वो लोग सेल भी कर सकते हैं? सेल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? दैट इज वन क्वेश्चन। बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म है jump.trade, आप वहां पे साइन अप कर दीजिए एक बार, वॉलेट में फंड्स ऐड करके एनएफटी ड्रॉप जो 22 तारीख को आने वाला है उसमें पार्ट लीजिए। जैसे ही आपको आपके एनएफटीज मिल जाएंगे, छोटा सा केवाईसी प्रोसीजर होता है बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस मैंडेटरी किए हैं, तो वो मिल करने के लिए आपको केवाईसी करना पड़ेगा। वो जैसे ही होगा आपको सेम प्लेटफॉर्म पे उस एनएफटी को यूज कर सकते हैं, और अगर आपको वो ट्रेड भी करना है तो मार्केट प्लेस पे भी आप वहां पे कर सकते हैं। सेम प्लेटफॉर्म jump.trade, मार्केट प्लेस और गेम साथ में। Okay. Or question, what will be the price range of the NFT? Somebody you want to take it? Yes. Also, okay. Already वो website में available है. Well, like how we mentioned, the super loot box, उसका price 25%, $25 में है. So $25 is the flat price. No matter you get normal NFT or a legendary NFT or an ultra legendary NFT, आप कोई भी NFT $25 में खरीद सकते हो. And yes, so that's the flat price. Plus, that enables your P2E opportunities. So all you have to do is just buy and hold it for a while until Jump.trade sends you notification, start your journey. Right. और एक क्वेश्चन था 22 अप्रैल को कैसे बाय करना है, तो वो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में विल गिव द लिंक। वो लिंक के साथ वो लिंक पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अगर आप केयूर 100 कोड यूज करते, वो कोड भी मैं दे दूंगा, तो आपको 100 रुपीज के, जैसे नेहा जी ने बताया कि 100 रुपीज के इथेरियम आपको मिल जाते हैं। और बाकी जो इसका प्राइस है, यू कैन ऐड दैट, और अभी से आप ऐड करके रखो, जिससे 22 अप्रैल को जैसे ही लॉन्च होता है आप तुरंत, बिकॉज आपने देखा होगा स्टैनली बच्चन एनएफटी ये दोनों आई थी, तो तुरंत ही, मतलब वो तो 53 सेकंड्स में चली गई थी, तो उस हिसाब से जैसे ही जल्दी बाय कर पाएगा तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। हमने लास्ट टाइम ये किया था सबरीन और मैंने, हम लोगों ने अपने अकाउंट्स पहले से ही फंड करके रखे हुए थे, सो दैट जैसे ही ड्रॉप आ रहा हम रेडी है, अपना नंबर टाइप करेंगे, 5 NFTs 10 NFTs एंटर, बस
इतना ही काम रखा था. So I would suggest everyone who's willing to take like part in this NFT loot box that will come on 22nd, बिल्कुल यही करके रखिए. एक दिन पहले ही सही, बट अपना अकाउंट बना के रखिए, अपना वॉलेट फंड करके रखिए, so that last minute there'll be no problem. बाकी आई होप मैंने जो भी क्वेश्चंस थे कवर कर लिए होंगे, और ऐसी कोई चीज है जो आप लोग, मतलब मैं पूछना भूल गया हूँ और आप लोग वैसा कोई कुछ ऐसा रह गया हो जो कवर करना. बाकी ऑडियंस के भी जो भी क्वेश्चंस थे, आई होप कि हमने सारे क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछ लिए क्लास. बट वैसी कोई अगर चीज हो जो इफ यू वुड लाइक टू एलाबोरेट ऑन दैट. ऐसा तो आई थिंक सब कुछ हमने मोस्टली कवर कर दिया. समरीन, यू हैव एनीथिंग इन माइंड? यस. Yeah, not really, but during the conversation when Keyur asked me abhi NFTs ka next 5 years mein what are the possibilities, I'm taking this out of the session. मैं बहुत I'm just like into that conversion कि क्या क्या हो सकता है. But again, looking forward for 22nd of April, आप सबको आना है, वॉलेट फंड कीजिए. एंड बेस्ट पार्ट इज, आपको कभी भी कोई भी डाउट्स हो, वी एज अ टीम आर ऑलवेज अवेलेबल इन डिस्कॉर्ड एज वेल. डिस्कॉर्ड है, ईमेल है, टेलीग्राम है, एंड इवन इन सोशल मीडिया यू कैन डीएम अस डायरेक्टली. एंड शायद ही कोई ऐसा यूजर होगा हु हैज नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई फ्रॉम द टीम गार्डन लिंक फॉर व्हाटएवर क्वेरीज दे हैव. तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एंजॉय द प्रोसेस. जाइए, फन कीजिए, वेट कीजिए. ड्रॉप में बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट, because again it's cricket and we have seen a massive success with previous NFTs. So हमको पता है कि कितना बड़ा डिमांड होने वाला है. तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड बी प्रॉम्प्ट ऑन टाइम, बिकॉज वी रिमेंबर हम लोग लाइव जा रहे थे. बाय द टाइम द लाइव वाज लोडिंग, the NFTs are sold out. Abhi us time pe we didn't feel bad that we didn't go live, but we were extremely happy that 12,000 NFTs got sold out under a minute. So again, expecting somewhere like that, because cricket is huge, right? So cricket ka koi there is no comparison for the demand it has, be it in any field. Cricket is huge. So what I suggest is be ready right now. Be ready at least a day prior to the drop. तो जाइए, वॉलेट में फंड कीजिए, केयूर का प्रोमो कोड यूज कीजिए, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड. दिस कैन बी योर स्टार्ट ऑफ जर्नी. अभी राइट टाइम है टू स्टार्ट योर जर्नी विद NFTs. राइट. और 22nd को जब लॉन्च होगा, वेल उस टाइम पे भी हम लाइव करने की ट्राई करेंगे और देखेंगे, मतलब कि बिल्कुल. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने कवर अप नहीं किया है. अब जब समरीन बता रही थी तब मुझे याद आया कि हम लोगों ने पिछले वाले बियॉन्ड लाइफ के प्रोजेक्ट में भी ये किया था. हम समथिंग कॉल्ड एज ट्रेजर बॉक्स इंट्रोड्यूस करते हैं. ट्रेजर बॉक्स एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. किसके लिए? जो इस ड्रॉप में पार्ट लेते हैं, जो 22 तारीख को होगा. लेट्स से मैंने और समरीन ने और केयूर ने, हम लोगों ने NFTs खरीदी. मैंने 5 खरीदी, समरीन ने 10 खरीदी, और आपने खरीदी 16 सपोज, लेट्स से केयूर. तो हमें क्या होगा, एक ट्रेजर बॉक्स को एक्सेस करने का परमिशन मिलेगा. ट्रेजर बॉक्स क्या है? तो बहुत सारे कॉइन्स, डिफरेंट कॉइन्स, जिसमें आपको जीतने को मिलेंगे. जीतने को एज इन मैंडेटरी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. अगर मैंने 5 NFTs खरीदे हुए हैं जमडॉट के थ्रू, तो मुझे एक बार एक्सेस करने को मिलेगा, और जिसमें मेरे लिए कॉइन्स होंगे ट्रेजर बॉक्स में. आइदर मैटिक होगा, BTC होगा, ETH होगा, या कोई USDT होगा, अलग अलग, या फिर कॉम्बिनेशन है, कुछ भी होगा, बट कुछ ना कुछ अमाउंट होगा. ये पूरा ट्रेजर बॉक्स जो है वो $22,000 US का है. तो इट मींस सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है. $52,000 US. Sorry. $52,000 US का है. तो हम सब के लिए कुछ ना कुछ. भाई मैं सोचू केयूर ने जब बोला, उन्होंने ऐसा, अरे ओके, there's something wrong. Okay, 52,000 is the number, guys. तो सबके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली है. लास्ट ईयर भी जब चक्रा वाला NFT का लॉन्च हुआ था, तब ट्रेजर बॉक्स कॉन्सेप्ट यूज किया था. बहुत लोगों ने ट्वीट भी किया था कि उनको बहुत अच्छे प्राइजेस और कुछ कॉइन्स मिले थे, जीतने का मौका मिला था. मैं ये कह रही थी,
कि 5 अगर मैंने खरीदे तो मुझे एक बार ट्रेजर बॉक्स एक्सेस करने को मिलेगा, बिकॉज समरीन ने 10 खरीदे हैं तो समरीन को 2 बार एक्सेस करने को मिलेगा, और दोनों बार मैंडेटरीली उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वो उसके जो jump.trade के वॉलेट है उसमें वो मनी आ जाएगा ट्रांसफर होके। आप अगर 16 ले रहे हैं तो आप 3 ऐसे ट्रेजर बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं क्यूर। ये एडवांटेज है कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो NFTs खरीदते हैं और कम्युनिटी में एंटर करते हैं हमारे साथ। Yes. तो एटलीस्ट 5 करने पड़ेंगे ना? Yes. At least 5. Yes. So every 5th NFT को आपको 1 treasure box unlock करने का मौका मिलेगा. Okay. Also Right. Keyur, नेहा ने rightly explain किया treasure box के बारे में. एक और add on है. हमने जब पिछले बार treasure box लाया था स्टैनली के टाइम पे, हमने कम्युनिटी को ये प्रॉमिस किया था कि जो भी लेफ्ट ओवर अमाउंट होगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि सब लोग क्लेम कर लेंगे, डेफिनेटली सब लोग को करना चाहिए, बट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ लेफ्ट ओवर प्राइस। जो हमारा जो बजट था, आई थिंक लास्ट टाइम वी गॉट इन अराउंड 35 lakh in total. 35 lakh in total was the budget for treasure box, which was open for the community, open for the NFT holders to be very specific. उसमें जो भी लेफ्ट ओवर है, हमने बोला था कि नेक्स्ट ड्रॉप यू विल फाइंड समथिंग इवन बिगर, एंड जैसे हमने बोला, सो एवरी टाइम गार्डनिंग सेज समथिंग, विल मेक श्योर दैट हैपेंस। इस बार जो भी हमारा ट्रेजर बॉक्स का बजट था, विद दैट जो भी लास्ट टाइम का लेफ्ट ओवर है वो भी हम लोगों ने ऐड किया है इसमें, एंड टुगेदर वी आर दिस टाइम ड्रॉपिंग 40 lakh INR worth treasure box. So it's going to be even bigger. When I say even bigger, it is also going to be even better. तो आप सबको एक ट्रेजर बॉक्स तो खोलना ही चाहिए देखने के लिए कि what this can be, not just your journey with NFTs, also cryptos. Right. So yeah, and also gaming. I mean, this is सोने पे सुहागा. You just get everything. All that you have to do is sign up and fund your wallet right now. Right. Yes. आई एम श्योर कि काफी सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे, काफी सारे लोग अभी से फंड कर देंगे, एंड 22 को जैसे ही लॉन्च, एंड व्हाट विल बी द टाइम? 22 को कितने बजे होगा? It is expected by 12 PM IST. Yeah. ओके, ठीक है, तो वो भी हम लोग मतलब जैसे वो हो जाए तो हम अपडेट कर देंगे। तो काफी सारे लोग करेंगे, एंड उसका भी डिटेल्स आ जाएगा। तो that's the time for now. Again, definitely वो प्रॉपर टाइम है, बट उसका अनाउंसमेंट भी हम बोलेंगे। Yes. उसके लिए बस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल्स गार्डन लिंक के jump.trade के फॉलो कीजिए। I'm sure Keyur जी भी एक पोस्ट जरूर करेंगे about the timings, जिनको भी कोई नहीं, मुझे भी लाइव आना पड़ेगा ना इसलिए। Exactly. Perfect. Works. Okay. Wonderful. राइट, तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया। थैंक यू समरीन, थैंक यू नेहा। काफी ज्यादा मजा आया, काफी सारी चीजें सीखने मिली कि क्या चीजें हैं, लाइक NFT क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, क्यों कैसे हम NFT से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। काफी सारी नई चीजें सीखने मिली। थैंक यू फॉर दैट। काफी ज्यादा मजा आया, एंड आई होप कि जल्द ही वापस हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करें। So thank you very much. Sure. It was nice having you on our channel. Thank you. Same here, Keyur. Thanks a lot. We had Thank you so much. Nice conversations with you. Thank you. Bye bye. Perfect. Thank you. Bye bye. Yes.